everyone. Good morning, all of you. Hello, my voice is audible. I am audible. Yes, yes, sir. Okay, so let's start. We have completed in last lecture, uh, and we start unit number 1, SI unit and measurement. Right? We have discussed the measurement of mass, measurement of volume, measurement of length, measurement of temperature, need for measurement in physics के why the need या फिर यूज ऑफ मेजरमेंट इन फिजिक्स, राइट? फिजिकल क्वांटिटी, डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी, राइट? तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? अ फिजिकल क्वांटिटी इज measurable and described, right, but not touchable and क्या था, बोलिए, याद है तो किसी को? इफ यू अंडर रिमेम्बर can give the answer. What is physical quantity? A quantity which is measurable and understandable but not observable or touchable is called physical quantity. For example, mass, length, area, temperature. ગુજરાતીમાં કહું તો એવી ભૌતિક રાશિ કે જેને માપી શકાય છે, સમજી શકાય છે, પરંતુ જોઈ શકાતી નથી અને સ્પર્શ કરી શકાતો નથી તેવી રાશિને ભૌતિક રાશિ કહે છે. ઉદાહરણ તરીકે દળ, લંબાઈ, क्षेत्रफल, तापमान वगैरह. Right? Next, the type of physical quantity. Right? There are mainly two types of physical quantity. One is fundamental quantity and other is derived quantity. Right? So what is fundamental quantity? The physical quantity which do not depend on any other physical quantity for their measurement are known as fundamental quantity. Right? कि ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए, वो क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दूसरी कोई भी क्वांटिटी हमें यूज नहीं करना है. यानी कि जो आप मेजर कर रहे हैं, जो क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं, वो दूसरी क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है. राइट? उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी. ગુજરાતીમાં કહું તો મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ કે એવી ભૌતિક રાશિ કે જેનું માપન બીજી કોઈ પણ ભૌતિક રાશિ પર આધારિત નથી તેવી ભૌતિક રાશિને મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ કહે. For example, mass is a fundamental quantity, time is a fundamental quantity, length is a fundamental quantity, and temperature is also fundamental quantity. Why? Because mass, the measurement of mass is not depend on temperature, time, length, area, etc. Right? Same as other example, time is not dependent on mass, length, etc. Right? So this quantity is known as fundamental quantity. Got it? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Right? Understand na? Any doubt for fundamental quantity? No, sir. So remember this definition of fundamental quantity and also remember example of fundamental quantity. Right? For a 2 mark purpose definition. आपके एग्जीटीयू के एग्जाम में 2 मार्क के डेफिनेशन में आ सकता है कि डिफाइन फंडामेंटल क्वांटिटी विथ एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. राइट? नाउ सेकंड इज डेराइव क्वांटिटी, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય સાધિત ભૌતિક રાશિ. Right? So what is derived quantity? The physical quantity which depend on one or more fundamental quantity. Only one नहीं, right? या तो वो एक भी होगा और एक से ज्यादा भी होगा. मिनिमम जो है वो वन, मैक्सिमम कितनी है वो हम नहीं कह सकते. राइट? तो व्हाट इज derived quantity? The physical quantities which depend on one or more fundamental quantity. राइट? यहाँ पर वर्ड याद रखना है फंडामेंटल क्वांटिटी. राइट? फॉर देयर मेजरमेंट आर नॉन एज डिराइव क्वांटिटी. ગુજરાતીમાં કહીએ તો એવી ભૌતિક રાશિ કે જે એક અથવા એક કરતા વધારે ફંડામેન્ટલ મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ પર આધાર રાખે છે, એવી ભૌતિક રાશિ કે જેનું માપન
એક અથવા એક કરતા વધારે મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ પર આધાર રાખે છે તેવી ભૌતિક રાશિને મૂળભૂત સાધિત ભૌતિક રાશિ કહે. રાઈટ, કે ધ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી which is depend on one or more than one fundamental quantity for their measurement. Their measurement means derived quantity का measurement, right? Are known as derived quantity. For example, area, speed, volume, force, etc. is a derived quantity. Why area is a derived quantity? तो एरिया यानी क्षेत्रफल आप जिसको बोलते हैं, राइट? तो कैसे मेजर करते हैं एरिया? लेंथ इनटू ब्रेड. एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड. क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुण્યા પહોળાઈ, बराबर. नाउ लेंथ इज अ यूनिट, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट? किसकी फंडामेंटल है? लेंथ आप फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, राइट? इनटू ब्रेड. ब्रेड इज आल्सो वी हैव measure in meter, and meter is a unit of length. Also breadth and length both are fundamental quantity, right? तो area is a derived quantity. Why? एरिया को डिराइव करने के लिए, क्षेत्रफल को डिराइव करने के लिए हम एक फंडामेंटल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं. कौन सा फंडामेंटल? तो लेंथ, राइट? देखिए, तो एरिया जो है वो उसके अंदर हम ओनली वन फंडामेंटल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं. कौन सी? तो लेंथ यूज कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए एरिया जो है वो दिस इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. नाउ सेकंड इज अ स्पीड. स्पीड मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? होगा ना स्पीड? यस सर. सर. फाइनल. यस सर. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कौन सा होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. Distance upon time. फाइनल. यस सर. Yes, sir. यस सर. नहीं, स्पीड मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? मैंने फर्स्ट लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन था तब बताया था व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिस्टेंस, राइट? गलत है? कंफ्यूजन हो रहा है ना? Yes, sir. यस सर. राइट? तो आप सही है, राइट? स्पीड मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? स्पीड इज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेयर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेयर वेलोसिटी इज इक्वल टू, વેલોસિટી ગુજરાતીમાં જેને વેગ કહેવાય, બરાબર? સ્પીડ એટલે ઝડપ. સ્પીડ ઇન્ટુ બ્રેકેટ ઝડપ लिखिए इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? 1 करके. सेकंड करके लिखिए वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? दोनों का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है. तो अब स्पीड जो है वो डिराइव क्वांटिटी है. व्हाई? बिकॉज वी यूज टू this quantity means speed is equal to we have using two fundamental quantity. One is a distance, right? Distance, and distance we measure in meter, and meter is a unit of length. So one physical quantity is length and second is time, right? तो ये जो speed है वो दो physical quantity use करके हम derive करते हैं, distance upon time, right? थर्ड है वॉल्यूम. वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? तो जैसे एरिया फाइंड करते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बट वॉल्यूम में आपको एक और टर्म ऐड करनी होगी जिसको बोलते हैं हाइट. यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम मतलब कद गुजराती में कहवाय, राइट? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. अब तीनों जो है लेंथ वो भी हम मीटर में कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे. हाइट इज ऑल्सो मेजर इन मीटर एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो इन मीटर, एंड these three are also is unit of या तो use fundamental quantity of length. So volume is equal to derived quantity, yeah, right? Then force. What is unit of force? F is equal to, न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया है, न्यूटन सेकंड लो याद है किसी को? फोर्स F is equal to, किसको बोलते हैं फोर्स? अभी ठीक है, चलो यहाँ पर ओनली फोर्स याद रखो. जब हम बहुत सारी डिराइव क्वांटिटी है, राइट, वो देखेंगे तब
वहां पर हम करने वाले हैं व्हाट इज डिराइव क्वांटिटी। Now I'm stop sharing here and share other. ठीक है, same derived quantity and other is just 1 minute. Now as show in your screen here given total 7 base quantity or also known as fundamental quantity, right? तो आपको GTU के एग्जाम में आ सकता है कि explain SI unit system. The full form of SI unit is इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। एसआई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। तो व्हाट इज यूनिट, सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हाट इज यूनिट, राइट? आप लोगों को ये समझ में आ गया ना, फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यस और नो? Yes, sir. देखिए हमने अभी तक टोटल 3 क्वेश्चन ही किए हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो उसके अंदर 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, राइट? इतना ही हमने हमारे सिलेबस का कवर किया है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है SI unit, right? The full form of SI is इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। पहले आपको आई का यूज करना है, उसके बाद एस का करना है, राइट? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरे मन में होगा कि व्हाट इज यूनिट, किसको बोलते हैं यूनिट, राइट? तो देखिए आप जब मार्केट में जाते हैं या तो कहीं पर भी ट्रैवलिंग करते हैं तो बोलते हैं कि अहमदाबाद से सूरत का डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर के 200, सपोज हम कंसीडर करें 200 किलोमीटर, तो 200 के बाद जो किलोमीटर बोल रहे हैं दिस इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस या तो लेंथ, राइट? जो किलोमीटर यानी किलोमीटर को यूनिट बोलते हैं। उसके बाद आप मार्केट में एप्पल लेने जाते हैं तो वहां पर बोलते हैं 1 kg एप्पल। तो 1 जो है वो एक नंबर है और kg जो है वो जो मास है उसका यूनिट है, राइट? तो आप अगर डेफिनेशन आपको लिखना है, राइट, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इंग्लिश के अंदर कि अ यूनिट इज अ, याद रखना है सबको, या तो लिखना है तो लिख लीजिए, अ यूनिट इज अ वैल्यू, सबसे पहला तो एक वैल्यू है, राइट, कॉमा क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड, तीनों का मीनिंग सेम ही है, वैल्यू बोलो, क्वांटिटी बोलो और मैग्नीट्यूड बोलो तो भी, राइट, तीनों का मीनिंग इज ऑल्सो सेम। A unit is a value, quantity or magnitude in term of which other values, quantity or magnitude are expressed, right? Generally a unit is independent of physical and environment condition and is fixed by definition,
nation, right? So this is known as unit. અને ગુજરાતીમાં લખવું હોય તો ખાલી 5 to 6 વર્ડ છે, બરોબર? કોઈ રાશિના પ્રમાણિત માપને ભૌતિક રાશિ, કોઈ રાશિના પ્રમાણિત માપને તે ભૌતિક રાશિનો એકમ કહે છે કે એની સ્ટાન્ડર્ડ, ઇંગ્લિશમાં સેકન્ડ ડેફિનેશન भी आप लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज यूनिट, राइट? आप अगर सेकंड फर्स्ट डेफिनेशन आपको जो बोला वो लिखना है तो वो लिख सकते हैं, या तो फिर ओनली सिंपल कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ any physical quantity is known as unit of this physical quantity, right? For example, meter is a unit of length, kg is a unit of mass, second is a unit of क्या था, क्या आएगा सेकंड, किसका यूनिट है? टाइम, राइट? Kelvin is a unit of temperature, mole is a unit of amount of substance, and candela is a unit of luminous intensity, right? तो SI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा भी है, या तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, दो नाम है, राइट? यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर SI यूनिट मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, राइट? तो टोटल पूरे वर्ल्ड में, ओनली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट? पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल 7 जो है वो फंडामेंटल बोले तो फंडामेंटल और स्टैंडर्ड बोले तो स्टैंडर्ड यूनिट है, राइट? तो सबसे पहला है लेंथ, आपको ऐसा टेबल याद रखना है और प्लॉट करना है, राइट? कि ऐसा यूनिट, तो उसके बाद फर्स्ट पॉइंट आएगा ऐसा यूनिट इज इक्वल टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट? उसके बाद टेबल प्लॉट करो, उसके अंदर 7-8 रो प्लॉट करो और 3 कॉलम। रो किसको बोलते हैं? जो किसको बोलते हैं? रो। एक्सेल देखा है, रो और कॉलम? जो नीचे की तरफ है उसको रो बोलते हैं सर। देखिए ऊपर से नीचे जो हमने सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, वो है रो, और जो 3 ब्लॉक बनाए हैं उसमें ब्लू में लिखा है बेस क्वांटिटी, नेम ऑफ यूनिट एंड सिंबल ऑफ यूनिट, राइट? तो ये तीनों को कॉलम बोलते हैं, राइट? ऐसा बना दो, हेडिंग लिखो पहला बेस क्वांटिटी, या फिर वहां पर आप लिख सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, देन सेकंड में नेम ऑफ यूनिट एंड देन सिंबल ऑफ यूनिट, राइट? ગુજરાતીમાં લખવું હોય તો કઈ રીતે લખશો? મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ, તેનો એકમ અને તેની સંજ્ઞા, સિમ્બોલ ઓફ યુનિટ यानी संज्ञा, કઈ રીતે એને લખવાનું? તો લાઈક तो लेंथ फर्स्ट ऐसा यूनिट या तो फंडामेंटल लेंथ हम किस में मेजर करेंगे? स्टैंडर्ड में, राइट? ऐसे जो मैंने आपको बोला था लेंथ जो है वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, वो सब में मेजर करते हैं, राइट? बट लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कौन सा है? मीटर, राइट? और मीटर का सिंबल है स्मॉल एम। क्या है? स्मॉल एम। देखिए मीटर जो लिखा है यहाँ पर, तो मीटर में भी पहला जो एम है वो कैपिटल नहीं करना है, आपको स्मॉल ही रखना है, राइट? तो लेंथ मीटर स्मॉल एम। सेकंड है मास, ગુજરાતીમાં લખાવું લેન્થ એટલે લંબાઈ, मीटर અને सिंबल तो अल्फाबेटिक में एम ही आएगा, वहां पर आपको गुजराती में मी करने की जरूरत नहीं है, वरना मार्क मिलेंगे नहीं, राइट? गुजराती में जे लोग होय ते के लंबाई गुजराती में मीटर लखवानुं અને सिंबल संज्ञा तो स्मॉल एम ज आवशे, त्यां तमारे मी करवानी जरूर નથી, बरोबर? सेकंड यूनिट है मास। ये सातों के सातों याद रखने हैं हाँ आप लोगों को। मास गुजराती में जेने कहवाय दળ, तो मास जो है हम मेजर करेंगे इन किलोग्राम, राइट? वैसे मास जो है वो ग्राम, किलोग्राम, टन, राइट? वो सब में मेजर करते हैं ना, क्विंटल, वो सब में। बट उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है किलोग्राम और उसका सिंबल है केजी, राइट? और सिंबल जो है वो के भी स्मॉल है, जी भी स्मॉल है, राइट? और के और जी के बीच में डॉट आपको नहीं करना है, कंटिन्यूअसली केजी लिखना है, यहाँ पर जैसे लिखा है वैसे ही, राइट? थर्ड इज अ टाइम,
राइट, समय किसमें मेजर करेंगे, सेकंड और स्मॉल एस। उसके बाद फोर्स है इलेक्ट्रिक करंट, गुजरातीમાં જેને કહેવાય વિદ્યુત પ્રવાહ, આપણે ઘરે જે ઇલેક્ટ્રિસિટી આવે ને તે, બરોબર, तो वो है एम्पियर। तो यहाँ पर देखिए एम्पियर अगर पूरा लिखना है तो ए स्मॉल रहेगा, बट ओनली उसका सिंबल लिखना है तो कैपिटल ए करना है, वहां पर आपको स्मॉल ए नहीं करना है, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो कैपिटल ए है। देन आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी तापमान, वो हम मेजर करेंगे केल्विन, राइट। तो केल्विन का जो के है वो स्मॉल आएगा, बट अगर उसको सिंबल में टाइप करो तो कैपिटल के आएगा। मीन्स कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है या तो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका यूनिट कोई साइंटिस्ट के नाम पर से आता है। यहाँ पर एम्पियर और केल्विन दोनों साइंटिस्ट के नेम है, राइट। तो उसका यूनिट कोई साइंटिस्ट से नाम से आता है, यानी कोई भी क्वांटिटी है वो फंडामेंटल हो या डिराइव क्वांटिटी है, उसका यूनिट अगर कोई साइंटिस्ट के नाम से आता है, राइट, तो आपको पूरा नाम लिखना है तो सब लेटर जो है वो स्मॉल में लिखना है, और अगर आपको सिंबल ही लिखना है तो सिंबल लिखना है तो वो कैपिटल में ही आएगा, राइट। देखिए अगर इलेक्ट्रिक करंट का मुझे पूरा यूनिट लिखना है तो एम्पियर, यहाँ पर जैसे AMPERE लिखा है वो से आपको एम्पियर पूरा लिखना है, बट स्मॉल लेटर में, राइट। बट ओनली आपको सिंबल लिखना है तो एम्पियर का ए स्मॉल नहीं आएगा, कैपिटल आएगा। सेम केल्विन पूरा लिखना है तो कैपिटल फिजिकल मीटर किलोग्राम को सर, पूरा आवाज कपाय છે। सिंबल लिखना है तो वो भी स्मॉल ही आएगा। दूसरी क्वांटिटी है, यहाँ पर लेंथ है, मास है, टाइम है, राइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। उसका जो यूनिट है वो साइंटिस्ट के नेम से नहीं है, राइट। तो आपको पूरा नेम लिखना है यूनिट का तो भी स्मॉल में आएगा, और सिंबल जो है वो लिखना है तो भी वो स्मॉल में ही आएगा, राइट। गॉट इट? यस और नो? यस सर। Yes, sir. राइट। देन आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो यूनिट है वो केमिस्ट्री के, यानी जो भी केमिकल इंडस्ट्री होगी या केमिकल की लैब होगी वहां पर यूज करते हैं, राइट, जिसका यूनिट है मोल, MOLE, और उसका सिंबल है MOL, ओनली मोल, राइट। एंड 7 इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट, कि ज्योति तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, लाइट जो है सन में से जो लाइट आती है उसकी इंटेंसिटी कितना है, यानी कितना अंधेरा है और कितना लाइट आपको दिख रहा है, उसकी वो मेजर करने के लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, उसका यूनिट है कैंडेला और CD, राइट। याद रहेगा इतना? यस और नो? यस यस सर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ऐसा यूनिट, ले लिया। और सबको यूनिट की डेफिनेशन याद रखनी है, राइट। व्हाट इज यूनिट? तो द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। गुजरातीમાં કહીએ તો કોઈ રાશિના પ્રમાણિત માપને ભૌતિક રાશિનો એકમ કહે છે, બરોબર। अब व्हाई द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट? अब ऐसा यूनिट है वो क्यों रिक्वायरमेंट है उसका? हाँ, कि व्हाई, आपको अगर पूछे कि व्हाई रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट का क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों जरूरत पड़ा स्टैंडर्ड यूनिट? एनीवन एक्सप्लेन? यस और नो? आपको बोले क्या यूनिट जो है, जो स्टैंडर्ड यूनिट, उसका रिक्वायरमेंट क्यों है? किसी को नहीं पता है? नो सर। नो सर। नो सर। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि हमारे इंडिया में जो मीटर, जो लेंथ है वो किस में मेजर करते थे? चलिए अमेरिका और फ्रांस का ही ले लेते हैं, राइट। जब ऐसा यूनिट सिस्टम नहीं था, राइट, तो उसके पहले
फ्रांस में जो है, फ्रांस के अंदर लेंथ को मीटर मेजर करने के लिए फुट, फुट यानी क्या? पाँव, हमारे हमारे बॉडी में फुट किसको बोलते हैं हम? पैर को। पैर को, राइट। तो फ्रांस के अंदर डिस्टेंस मेजर करने के लिए पैर यानी फुट यूज करते हैं, राइट। जबकि अमेरिका के अंदर वहां पर स्केल आ गया था, राइट, कि 1 फुट यानी 30 सेंटीमीटर, तो वहां पर वो Yes, sir. स्केल यूज करते थे। और हमारे इंडिया में, राइट, आपने देखा होगा कि कोई लोग जो है वो दोनों हाथ पहले तो वो बंद कर देते हैं, चारों के चारों उंगलियां बंद कर देते हैं, और थंब जो है उसको साइड में ले जाते हैं, राइट, देखा है ना कहीं ना कहीं। तो Yes, sir. दोनों हैंड बंद कर देते हैं, उसके बाद दोनों थंब को एक दूसरे के टच में लाएगा और जो डिस्टेंस मिलेगा उसको बोलते थे फुट, राइट। फ्रांस में तो फुट का यूज करते थे यानी पैर का। इंडिया के अंदर दो हैंड मिलाकर डिस्टेंस मेजर करते थे, राइट। और अमेरिका के अंदर, राइट। तो अब देखिए, सपोज सेम साइज का टेबल है, राइट, कि तीनों जगह अमेरिका, फ्रांस और इंडिया तीनों जगह सेम साइज का टेबल है, राइट। और तीनों पर्सन को उसका जो लेंथ है वो मेजर करने को बोलेगे तो क्या डिफरेंस आएगा? तीनों सेम हो गए या डिफरेंट हो गए? तीनों का जो Different. रीडिंग है, कि अमेरिका का जो जितना फुट आया उतना ही फ्रांस का आएगा, कि अमेरिका का 10 फुट आया तो फ्रांस का भी 10 फुट आया, और इंडिया का भी 10 फुट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। नहीं, नहीं आएगा ना, क्योंकि नहीं अमेरिका के आएगा। पास स्केल है, तो वो स्केल से यूज करेंगे तो सपोज उसके पास उसका जो रीडिंग है वो 10 सही फुट माप है। आता है। फ्रांस जो है वो अपना पैर रख कर मेजर करेंगे तो वो भी अलग आएगा, और हम लोग जो है हाँ, वो हमारा दोनों हैंड से करेंगे तो तीनों का रीडिंग अलग अलग आता है, राइट। तो इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी या तो फिर अनबैलेंसिंग। ऐसा अनबैलेंसिंग होता है सभी में, कि टाइम मेजर करने में, लेंथ मेजर करने में, मास मेजर करने में, सभी में। पहले जब ऐसा यूनिट नहीं था उसके पहले ऐसे ऐसे अनबैलेंसिंग मेजरमेंट होता था, तो ये सब मेजरमेंट सभी जगह कॉमन करने के लिए ये सिस्टम आई, राइट। अब एक्सप्लेन कर सकते हैं ना ऐसा सिस्टम क्यों हम अप्लाइड हुआ फिजिक्स के अंदर? यस और नो? Yes, sir. यस सर। और सपोज अभी आप जितने भी ऑनलाइन है, राइट, कि अगर आप जितने भी स्टूडेंट अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, किसी के पास वो आप हमारी मीटर स्केल है, बैग के अंदर जो आता है स्केल का या तो ग्लास का, राइट, 1 to 15 सेंटीमीटर वाला, वो नहीं है, किसी के पास नहीं है, राइट। और मैं आपको वापस हमारी जो बुक है फिजिक्स की बुक, राइट, वो आपको दोगा कि इसका डिस्टेंस या तो लेंथ मेजर करो, तो आप फिर से आपके पास स्केल नहीं है तो आप कौन सा यूज करेंगे? आपके दोनों हैंड यूज करेंगे, राइट। तो सभी Yes, जितने sir. भी पर्सन अभी ऑनलाइन है वो सभी का आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा? अलग Same अलग आएगा। आएगा। अलग 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 आएगा अलग सर। आएगा ना, क्यों? क्योंकि अगर किसी की हाइट, किसी के हैंड जो है वो बड़े है, या तो हाइट बड़ी है तो उसके हैंड ऑब्वियसली बड़े होने हैं, राइट। Yes, किसी sir. के हाइट स्मॉल है तो उसके हैंड भी स्मॉल होंगे, राइट। हमारे इंडिया में तो भी उसके अंदर बैलेंसिंग नहीं था, तो एक आवाज बैलेंस कट लाने पाए के लिए एक मेथड यूज क्या ऐसा यूनिट जो है वो क्यों लाएंगे? यूनिट जो है क्वांटिटी सेम ही है, राइट, लेंथ ही मेजर कर रहे हैं, बट यूनिट भी सेम है, बट मेथड अलग अलग है। यूनिट जो था फ्रांस के अंदर फुट यूज करते थे, हमारे अंदर हैंड यूज करते हैं, और अमेरिका के अंदर स्केल यूज करते हैं। तो तीनों का जो मेजरमेंट की सिस्टम है, स्टाइल है, वो अलग अलग होती थी। उसके वजह से रीडिंग के अंदर सेम रीडिंग नहीं मिलते थे, राइट, डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग मिलते थे एक ही चीज के, राइट। तो ये सब ना हो इसीलिए ऐसा यूनिट सिस्टम आया है, राइट। यस और नो? यस Yes, सर। sir. राइट। तो अब व्हाट इज मीटर, व्हाट इज किलोग्राम, व्हाट इज सेकेंड, वो हम आगे करने वाले हैं। कि मीटर किसको बोलते हैं, किलोग्राम किसको बोलते हैं, सेकंड किसको बोलते हैं, राइट। कि ये जो आपने तो देखा है ना, घड़ी देखी है, उसमें सेकंड का जो पिन होता है जो एवरी सेकंड पर वो मूवमेंट करता है, राइट। तो वो माप Yes, sir. के उसको किसने बोला कि आपको
कितने टाइम के स्पाम में आपको चेंज होना है, राइट? कि मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, बट पहले 1 मीटर इज इक्वल टू कहाँ से लेकर आए लोग? किलोग्राम का जो आपने ब्लॉक देखा है मार्केट में जाते हैं तब, तो ये किलोग्राम किसने बनाया, कौन से बेसिस पर बनाया है, राइट? वो हमें उसी डेफिनेशन करनी है सभी की, राइट? बट वो हम आगे करेंगे। कितना हो गया? Yes, Yes, no? sir. यस सर। ओके। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटी इन डायरेक्शन, राइट? अब जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डायरेक्शन पर भी डिपेंडेंट है, तो उसके आधार पर उसके टू टाइप है, राइट? वन इज वेक्टर क्वांटिटी एंड अदर इज स्केलर क्वांटिटी, राइट? के टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, टू टाइप की फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया ना, वन इज अ फंडामेंटल, अदर इज अ क्या था अदर? Derived. डिराइव। अब उसके अंदर जो भी क्वांटिटी आती है बहुत सारी आती है, राइट? कि फंडामेंटल के अंदर ये 7 आएगी और डिराइव के अंदर तो 50 से भी ज्यादा है, राइट? तो वो भी ये दोनों में जो डेफिनेशन जो क्वांटिटी है उसमें भी दो पार्ट पड़ते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन, राइट? के डायरेक्शन के दिशाना आधार ऊपर बेस्ड ऑन डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिराइव इनटू टू कैटेगरी। वन इज, पहले स्केलर लो तो भी प्रॉब्लम नहीं, वेक्टर लो तो भी प्रॉब्लम नहीं। वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अदर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? ગુજરાતીમાં કહેવાય તો દિશાને આધારે ભૌતિક રાશિના બે પ્રકાર છે, અદિશ અને સદિશ ભૌતિક રાશિ, અદિશ ભૌતિક રાશિ અને સદિશ ભૌતિક રાશિ, રાઈટ? તો स्केलर एंड वेक्टर, अभी आपको हेडिंग दिख रहा है, राइट? स्केलर एंड वेक्टर। तो व्हाट इज स्केलर? तो स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके मेजरमेंट करने के लिए आता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। स्केलर क्वांटिटी आर क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, उसका मेजरमेंट, राइट? कि ऐसी भौतिक राशि, हिंदी में समझा देता हूँ, राइट? ये आप फिजिकल स्केलर की डेफिनेशन है फर्स्ट वाली, स्केलर क्वांटिटी आर क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली, राइट? कि ऐसी भौतिक राशि जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए ओनली उनका वैल्यू ही काफी है, राइट? कि कौन सी डायरेक्शन में जरूरी नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन जरूरी नहीं, ओनली उनका मैग्नीट्यूड वैल्यू ही काफी है, वो सभी भौतिक राशि को स्केलर भौतिक राशि बोलते हैं, राइट? કે ગુજરાતીમાં કહું તો એવી ભૌતિક રાશિ જેને સમજવા માટે ફક્ત અને ફક્ત તેના મૂલ્યની જ જરૂર પડે છે, ના કે તેની દિશાની, તેવી ભૌતિક રાશિને અદિશ ભૌતિક રાશિ કહે। અદિશ, અ અને દિશને છૂટા પાડો એટલે કે દિશા વગરનું, બરોબર? તો એને કહેવાય સ્કેલર ક્વોન્ટિટી, અદિશ ભૌતિક રાશि। यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हैं, मेजरिंग इन मास एंड मेजरिंग इन टेम्परेचर। तो आपने आपके जो ईयर है आई थिंक 16 और 17 ईयर सभी के हुए हैं, राइट? Yes, sir. आपके बॉर्न के बाद 17 या 8, किसी के 18 हो गए, किसी के 16 हो गए, राइट? तो कहीं पर भी आप मार्केट में गए, राइट? कोई भी दिन है, एक दिन तो सब लोग गए होंगे, और आपने जब टमाटर लेते हैं, टोमेटो, राइट? तो आपको वो जो पर्सन है वो क्या आप ऐसे बोलोगे कि मुझे 10 किलोग्राम टोमेटो नॉर्थ डायरेक्शन में दीजिए, ऐसा बोलते हैं कभी? No, sir. या तो ऐसा No, बोलते कि sir. टमाटर जो है वो लेफ्ट साइड दीजिए, राइट साइड दीजिए, 10 kg लेफ्ट साइड, ऐसा बोलते हैं? No, नहीं। sir. तो ऐसी क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन नहीं, ओनली आपको ऐसा बोला कि 10 kg, तो आप समझ जाओगे ना कि ये जो है वो 1 2 3 4 5 ऐसे 10 टाइम 1 kg करके कलेक्ट किया हुआ है, इसलिए इसको 10 kg बोलते हैं। कि आपको ऐसा देना होगा कि डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी कि 10 kg वाई एक्सिस, 10 kg एक्स एक्सिस, ऐसा कुछ देना पड़ता है? नहीं, आपको ओनली 10 kg बोले तो आप समझ जाते कि ये जो टोमेटो है वो 10 kg है।
दैट सेम टेम्परेचर, कि टेम्परेचर अगर ऐसा है कि 30 डिग्री सेल्सियस, राइट, तो समझ जाओगे कि अभी जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। या ऐसा बोलेंगे कि एक्स एक्सिस पर 30 डिग्री है, वाई एक्सिस पर, ऐसा कभी सुना है आपने? तो नहीं। तो स्केलर क्वांटिटी मींस मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर इज स्केलर क्वांटिटी। ओनली उसकी वैल्यू से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट, या तो समझ सकते हैं। वो सब क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, राइट। एंड सेकंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन है। तो वेक्टर क्वांटिटी आर क्वांटिटी दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिगर देखिए आप यहाँ पर, ये जो एक पर्सन है जो गेम आते, राइट, तो वो उसको फेस के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो फोर्स जो है वो कहाँ पर अप्लाई कर रहा है? तो फोर्स, सपोज वो एक पर्सन जो है वो फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, हम आगे देखने वाले हैं, राइट। तो 100 न्यूटन फोर्स जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाइड करता है, राइट। तो जो फोर्स है वो दिस इज अ, देखिए यहाँ पर 100 न्यूटन है, बट व्हाट इज 100 न्यूटन? कौन सी डायरेक्शन में? डायरेक्शन रिक्वायरमेंट है क्या लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, अप साइड में है, या डाउन साइड में है? तो साइड यानी डायरेक्शन हुआ, राइट। तो फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी जो भी है उसको क्वांटिटी का जो सिंबल है उसके ऊपर तीर करते हैं, एरो करके रिप्रेजेंट करते हैं सबसे। तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स का सिंबल है कैपिटल एफ, राइट, और कैपिटल एफ के ऊपर आपको तीर करना है, एरो करने है। यहाँ पर जो एरो है ऐसा एरो करना है, बट उसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट होगी, राइट। स्केलर क्वांटिटी के ऊपर कुछ भी करना नहीं, उसका ओनली सिंबल ही लिखना है, राइट। मास ओनली एम, टाइम ओनली टी, उसके ऊपर कुछ सिंबल आएगा, राइट। तो आज हम यहाँ तक, अगर है तो पूछ सकते हैं। आयुष, आपने क्या हिंदी में पूछना चाहते हैं आप? यस सर। आपको कोई क्वेरी थी ना कि एक बार हिंदी में बोल लिए सर? नहीं सर, आप इंग्लिश और गुजराती वो पढ़ा रहे थे, तो मैं सोचा एक बार हिंदी में बोल लेते तो और अच्छे